Today we are going to start our third lecture on accountancy, and today we will cover the functions of accounting in this lecture. So let's just start with the first point. First point is maintaining of the complete record and in systematical order. We record each and every transaction in the books of account, like we firstly record the transaction into a journal, and then we record it into the subsidiary books, and then after that we record it into the different accounts in ledger, and after that we record it into the trading and profit and loss account. From that we'll concluded that how much gross profit and how much net profit we earn, and after that we record it into the balance sheet. So we maintain each and every transaction in systematical order. Second is communicating the financial result to the various parties. We communicate the financial result to the various parties, that our organization, that our company is earning profit or facing loss, or we concluded this result by keeping the record in the systematical order while maintaining the books, while maintaining the final accounts like trading and profit and loss account. We came to know about the profit and loss of the company, so that it helped us to communicate it to the different parties whosoever is interested in our business. Third point is providing the assets, protecting the assets of the business. Accounting maintains the proper record of the various assets such as the cash in hand, bank balance and the debtors, etc., as it helps us to protect the assets of the business, because it helps us to record, because it helps us to maintain the proper record of the various assets such as the balance, कि हमारे पास कितना बैलेंस है, such as the cash in hand, that how much cash we have in our hand, and debtors, that is the person who is purchasing goods from us on credit. Fourth point is providing the assistance to the management. As you know, the management do the task of controlling, planning, decision making. Management do the decision making of the business. So it helps to assist the management that how to plan the system, how to plan the how to plan, how to control and how to take the decisions according to the accounts. So accounts अगर हमारे properly maintain होंगे तो it will help the management to assist, to provide the assistance. It help the management to control the business, it help the management to plan accordingly, it help the management to take the right decision on right time. Fifth is trustship. As you know that the management control the resources of the enterprises. हमारा जो management होता है वो हमारी जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है, और मैनेजमेंट सारे के सारे रिसोर्सेज को एक मतलब कि किस तरह से अलोकेट करेगा अपने बिजनेस के अंदर, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कौन देखता है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन देखता है, मैनेजमेंट देखता है. सो द मैनेजमेंट इज द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी एंड अकाउंटिंग असिस्ट देम टू कंट्रोल द रिसोर्सेज प्रॉपरली. मतलब अकाउंटिंग उन्हें ये हेल्प करती है कि उनको कौन से सेक्टर के अंदर कौन से लेवल के ऊपर जो उन्होंने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं वो कौन से लेवल के ऊपर वो करेंगे. सिक्स्थ इज द कंप्लायंस ऑफ द लीगल नीड्स. एज यू नो मतलब अगर हम कोई केस फाइल करते हैं एज अ कंपनी, अगर कोई हम केस फाइल करते हैं या अगर कोई हम पर कोई केस फाइल करता है तो वी हैव द अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, और वही प्रॉपर रिकॉर्ड हमें क्या करेगा, एक लीगल, हमारे लिए एक लीगल इंफॉर्मेशन बनकर सामने आएगा, एक लीगल एविडेंस बनकर सामने आएगा. सो द बिजनेस फर्म हैज़ टू सबमिट द वेरियस स्टेटमेंट्स इन दी जीएसटी के सेक्टर में अगर वो टैक्स भर रहे हैं तो तब भी उनको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए अपने सारे रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ते हैं, दैट दे आर मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड, और उनका इतना ही जीएसटी इतना ही टैक्स बनता है जो वो पे कर रहे हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए उनको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सो इट एक्ट एज द लीगल एविडेंस एंड सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज. ये गवर्नमेंट एजेंसीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हमें हेल्प करता है. And the seventh and the last point is that it fix the responsibility. तो accounting help in determining the profitability of each department of an enterprises. तो accounting जो है वो हमें ये help करता है कि हम ये जान सकें कि हमारे डिपार्टमेंट के मतलब हमारे बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर से हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है. अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से हमें लेस प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड को बोल सकते हैं कि वो क्या करे, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करे, सो दैट कि उससे हमें क्या हो, प्रॉफिट
धीरे धीरे उससे हमें इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो और प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाए। तो ये है सारे इसके फंक्शंस। पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हम मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं अपने, मतलब कि हमारा जो मेन फंक्शन है अकाउंटिंग का वो क्या है कि इट मेंटेन द कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकंड जो था ये क्या करता है कि ये हमारी थर्ड पार्टीज जो होती है उनसे हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट जो हमारा था प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये हमारे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग द असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। फिफ्थ इज द ट्रस्टीशिप, ये ट्रस्टीशिप का काम करता है। सिक्स्थ इज द कंप्लाइंस ऑफ द लीगल नीड्स, ये लीगल नीड्स की तरह हमारा काम आता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक एविडेंस, एक लीगल प्रूफ के तौर पर हम इसे रख सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या करता है, ये हर डिपार्टमेंट के हेड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में हेल्प करता है कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द बिजनेस। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।